इंटरेक्शन में और सोशली लोगों से मिलने में, बात करने में, इंटरेक्शन करने में पेशेंट डेवलप द एंजाइटी एंड फियर। बराबर है। अभी जब भी ये होता है, अभी इसका एक सिम्टम्स होता है कि अवॉइडेंस बिहेवियर। whenever there is a fear, whenever there is a phobia, there must be avoidance behavior in order to make comfortable by avoiding the situation, which which increase the which increase the fear and phobia। ठीक है मैडम, कोई प्रॉब्लम, right? So we have seen the difference between the fear, fright, shock and phobia, because the and the anxiety is soric, fear psychotic, fright is the syphilitic, phobia is the syphilitic, and even shock is the syphilitic. Another terms we use is the intense fear is there, but with the surprise, a sudden upsetting or surprising event or experience where the patient becomes benumb, हक्का बक्का जो बोलते हैं, हक्का बक्का हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ रिएक्शन ही थ्रो नहीं कर रहा है, जैसे वैसे सिचुएशन में ही इन द शॉक। दिस इज द इमोशनल शॉक, बिकॉज द टर्म शॉक मे बी यूज इन द पैथोलॉजी, हाइपोवोलुमिक शॉक with the different reason. This is the emotional shock, we can say, which comes due to the sudden unpleasant surprising event or experience। बराबर, इट इज गोज इनटू द, वी कैन से कि भाई शॉक में चली गई, बिकॉज इट indicates there is a some sudden upsetting or surprising negative event, not a positive, है ना। खुशी से शॉक में मुश्किल है ना, दुख से या सडन कोई न्यूज मिल गया, सडन एक्सीडेंट देख लिया, तो पेशेंट बिकम बिनम, राइट। तो दिस शॉक इज कम्स अंडर द सिफिलिस, राइट। नाउ वी हैव tried to understand the this anxiety disorder with the phobia and like this with some case. There are two cases. See whether I can able to explain this two case which indicate this emotions, right? Now try to understand it properly so that how we can convert the rubric, how and what सिम्टम्स वही नीड टू अंडरस्टैंड एंड कैच, बिकॉज पेशेंट तो काफी सारा बोलता है ना, हमको ये इवेलुएट करना है कि कौन सा सिम्टम्स लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम यही पे होता है कि केस तो हमको मिल जाती है, बराबर है कि नहीं, मतलब सिम्टम्स हमको मिल जाते हैं, पेशेंट के सिम्टम मिल जाते हैं, बिहेवियर मिल जाता है, बस उसमें कौन से सिम्टम, पहले तो ये है कि कौन से सिम्टम्स को इम्पोर्टेंस दिया जाए और कौन से सिम्टम्स को रूब्रिक्स में कन्वर्ट किया जाए, ये इसमें दिक्कत आती है। सो मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिशनर्स और बिगिनर्स, दे व्हाट दे डू, दे repertorize the all the symptoms present in the case। अभी वो 15 20 25 सिम्टम्स repertorize कर लेते हैं। तो when you do like this, the remedies, बहुत कॉमन रेमेडी आती है और आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि सल्फर ही आएगा, arsenic ही आएगा, so that will not able to definitely solve the case। So you have to pick up the symptoms or pick up the rubric accordingly on the basis of case, on the basis of pathology, on the basis of miasmatic diagnosis। One is the disease diagnosis and on the basis of miasmatic diagnosis. Whether it is a functional, whether it is a structural, whether it is a soric, psychotic, syphilitic, depends on that. We needs to pick up and convert that convert that symptoms into the rubric, right? So take the case. This is the 24 years female who is married, educated up to 12th standard, housewife, having one daughter, and husband is Lohar, right? Low socioeconomic uh, class से है, पर she was suffered since long and she shown to number of doctors कि
मतलब जो तकलीफ थी उसकी, उसके लिए उसने जनरल प्रैक्टिशनर्स इन्वेस्टिगेशंस भी किए, एक से नहीं हुआ दूसरा, दूसरे तीसरे डॉक्टर, चौथा डॉक्टर, हॉस्पिटल में भी बड़े दिखाया, बट देर इज अ नथिंग कम आउट। मतलब इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ नहीं आया, और एक डायग्नोस्टिकली भी ऐसा कुछ श्योर उनको बताया नहीं गया कि यू आर सफरिंग विद दिस एंड दिस. So such a neglected, we can say the neglected cases where where there is difficult to manage, है ना. अगर ऐसा केस हम प्रॉपरली समझ के उनको मेडिसिन दे के अगर रिजल्ट दे पाते हैं तो दिस इज वेरी appreciable, because why, this is the power of homeopathy, that in homeopathy and only in homeopathy we can understand the emotion, we can understand the psychology, we can understand the cause behind the result, we can understand the cause behind the symptoms that the patient is now presenting. पेशेंट ऐसे बोल रहा है, पेशेंट वैसे बोल रहा है, पर इसका कॉज क्या है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, कब से शुरू हुआ, right? If you just collect the symptoms which is present now, what the patient talking about, and just repertorize, then don't they couldn't able to solve the full case. So now how we approach, है ना, in such a cases, let us see. There is a video. विचार 24-year male हो ताप येते and accompanied with the, जेवण जात नाही मला. I think her mother. It's a since long back, मतलब 3-4 साल पहले केस. कधीपासून होत आहे? मला हे खूप जेवण जात दिवसापासून, नाहीये म्हणजे म्हणते. मैं डिलिव्हरी हिंदी में झाली तेव्हापासून जेवण नाही चाललं. अशीच कधीपासून होत आहे? पेशेंट का प्रेजेंटिंग सिम्टम देखिए, सिम्टम कैसे प्रेजेंट कर रहा है पेशेंट, कि मुझे भूक नहीं लग रही है, जेवण जातच नाही, इच्छाच होत नाही, आणि वजन दिवसेंदिवस कमी होता है ना, दिन पे दिन वजन कम हो रहा है और खाने की इच्छा ही नहीं हो रही, बस केस खत्म हो गया. अभी हम सोचते हैं कि अरे खाने की इच्छा नहीं हो रही, देर इज एवर्जन टू फूड, दिन पे दिन अगर ये मतलब वेट लॉस हो रहा है तो देर कुड बी पॉसिबिलिटी कि लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो. हम पूछेंगे कि बुखार रहता है क्या, देन वी कैन सस्पेक्ट द ट्यूबरकुलोसिस. तो ट्यूबरकुलोसिस कहाँ का है, कफ है क्या, एक्सपेक्ट्रेशन है क्या, तो लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस है, एब्डोमेन में ट्यूबरकुलोसिस है, तो कहाँ है. वी हैव टू, मतलब जब पेशेंट बोलता है ना तो हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस के, ठीक है ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, बराबर. वी हैव टू रूल आउट ऑल दिस, बिकॉज डोंट जंप into the psychiatric illness or psychiatric disorder directly without analyzing the physical diagnostic understanding. The physical मतलब bodily diagnosis like a jaundice हो सकता है, कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, उन्होंने जो टेस्ट किया है तो सोनोग्राफी किया है, सीबीसी में कुछ निकल रहा है क्या, टीबी का टेस्ट किया है ये पेशेंट ने, तो ऑल दिस टेस्ट हैव बीन डन. इफ इट इज नॉट डन, so if you are suspecting कि this is the physical area that needs to be evaluated, then first do that before stamping the psychiatric illness, right? So मला हे खूप दिवसापासून, म्हणजे डिलिव्हरी झाली तेव्हापासून और जेवण ये नाही तकलीफ चाललं. काफी दिन से है, मतलब डिलीवरी जब से हुआ है तब से अशीच है, कमजोरी, 1-2 वजन साल से, कमी, जब से बच्चा हुआ, ताप कमजोरी लग रही है, बुखार आ रहा है. 15-1 महिना होते, म्हणजे येत जाते जात जाते. बुखार जैसा आता जाता है, उसको लगता है बुखार आया, कमजोरी है, आता है जाता है कि नहीं, इस तरह से. काय नाही, तापासोबत काही असेल, सर्दी खोकला वगैरे होते की नाही तापच नाही, येते? तापच येते आणि डोकं खूप माझं दुखते. तापामध्ये? हो नाही, असंही दुखते माझं डोकं, असं भारी भारी वाटते, चिडचिडपणा होते. अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन द पेशेंट से सेइंग कि बा बुखार आता है, तो फिर बुखार, दिस इज द फीवर इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टर्मिनोलॉजी, और वी कैन नॉट से कि फीवर आया है तो हमको कहीं तो भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है. तो हमको ये समझना पड़ेगा कि
बुखार है तो कहीं तो लोकल इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है क्या। तो हमको उस तरह से क्वेश्चन भी पूछना जरूरी है वंस द पेशेंट फिनिश देयर टॉक, है ना। वो अगर फिनिश कर लेते हैं जो भी बात करना है, तो हमको ये पूछना है कि बुखार अगर है तो बुखार के साथ पेट में दर्द है क्या, गले में दर्द है क्या, सर्दी है क्या, खांसी है क्या। बिकॉज फोकल इन्फेक्शन और लोकल इन्फेक्शन वी नीड्स टू इवेल्युएट, दैट मे लीड्स टू द फीवर, राइट। अजून ओके. कोणाला बोलू वाटत नाही, असं चिंता लागून राहते, भीती, असं काही बघितलं की मनामध्ये विचार भीती राहते. सर दर्द होता है काफी इस बुखार के साथ में, कभी ऐसे भी सर दर्द होता है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, और कुछ अगर इंसिडेंस होता है तो एंजाइटी और फियर बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है और इंटेंस रहता है. आणि असं म्हणजे हे घडण का असं चिंता ते. काय घडेल असं वाटते. काही ना काही घडण, असं काही हादसे गिसे बघितले ते. काय घडेल असं वाटते. असं काही हादसे बघितले, समजा आता काही झाला हादसा, मृत्यू गित्यू कोणाची, मग ते बघितलं ना तेच विचार येते आणि भीतीशी वाटते. सी काय घडेल, और व्हाट एवर द पेशेंट्स टेलिंग टू यू, योर क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड एक स्किलफुल होना चाहिए. पेशेंट ने सिर्फ बता दिया कि डर लगता है, कुछ हो जाएगा ऐसा डर है, बस बात वहां पे खत्म नहीं होती है. We need to understand why these thoughts intrude in the patient mind. क्यों डर लग रहा है, तो पेशेंट बोल रहा है कि कुछ भी हादसे जब होते हैं तो बहुत डर रहता है मन में, या डर लगता है आगे क्या होगा, है ना. भीती कसली असते. तो ये हादसे ध्यान में रखिए कि कोई ऐसे हादसे होते हैं तो डर एक जो रिएक्शन हो उसका पेशेंट का इज द फियर, इंटेंस फियर. सो वेदर देयर कुड बी एनी बिग इंसिडेंट्स, अभी छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो डर लग रहा है, कुछ भी हादसा होता है तो निगेटिव हादसा, डेथ हो रहा है किसी का या और कुछ हो रहा है, तो ऐसा पेशेंट के साथ कुछ हुआ है जिससे ये तकलीफ शुरू हुई है, तो हमको ये माइंड में सोचना है कि इसका कॉज क्या है ना. ये कब से शुरू हुआ है, वेदर इट इज सिंस द बिगिनिंग, क्योंकि ये इट इज जस्ट नॉट लाइक जस्ट अ जनरल एंजाइटी है या ऐसे, इट इज अ स्पेसिफिक फियर. We can say there is a specific intense fear to the incidents or the things that happened with the patient life. भीती काय असते. तेच ते जे विचार येते ते भीती वाटते. काय होईल असं भीती असते की असं कसं झालं हे, म्हणजे दुसऱ्यांचा मृत्यू बघितल्यावर त्यांच्याबद्दल असते काही चिंता आहे की तुमच्याबद्दल. त्यांच्याबद्दल असं घरी कोणी बोललं तर असं बोलू नाही वाटत, त्याच विचारात राहते मी. म्हणजे घरी कोणी रागावलं तर. हो, रागवलं तर, काही बोललं तर. काय बोलते असे घरचे लोक. घरचे काही बोलत नाही, नॉर्मल बोलते, तरी मला ते म्हणजे बघून राहते ना, तर मला त्यांना काही बोललं तरी तेच वाटते. काही मनाला दुखेल असं काही बोलते का. नाही. मग तुम्हाला कोण टेन्शन येते. ते होला तसं, म्हणजे माझ्या समोर माझ्या मैत्रिणीचा एक हादसा झालता. ऐसे कि किसी ने कुछ बोला तो बहुत तकलीफ होती है, टेंशन आ जाता है. तो ऐसा कोई, द क्वेश्चन इज वेदर कि ऐसा कोई क्रिटिसाइज करने जैसा या ऐसा ऑफेंडिंग कुछ लैंग्वेज कोई यूज करता है घर के लोग, तो नहीं, घर के लोग तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सब ठीक है, वो ऐसे कोई तकलीफ वाला बोलते नहीं है, पर मुझे ही वो डर का माहौल तैयार हो जाता है या डर में रहती हूँ मैं. तो ऐसे वो इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ. उस देखो आगे कैसा ये कर रही है, मतलब तकलीफ कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पे आके पहुंची है. मतलब भूख नहीं लग रही ये था, है ना. भूख बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही और वजन कम हो रहा है, कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी. और पेशेंट की बात, जैसे एक इंसिडेंस हुआ था मेरे सहेली के साथ, उसके बाद से ये तकलीफ शुरू हुई. देखिए तेव्हापासून मी काही बघितले ना हास्य, तर तेच राहते माझ्या मनात. काय बघितलं पूर्ण सांगा बरोबर स्पष्ट.
म्हणजे काय झालं त्या पोरीला? माझी मैत्रीण अशी म्हणजे जळली होती तर ती हादसा बघितला होता. तेव्हापासून मी असं काही मृत्यू बघितली ना तेच मला येते विचार. झोप नाही येत. झोप तर पहिलेपासून मला झोपीचा त्रास आहे. झोप नाही येत, विचार येते. आणि डोकं भारी भारी वाटते, डोकं दुखते. मैत्रिणीचं कधी बघितलं होतं? मी होती तेव्हा चौथीला. चौथीला होती? हा. म्हणजे 10 वर्षाची होती तुम्ही? हो. तेव्हा बघितलं? हो. ती काय जळली होती? हो. घरात? हो, माझ्या समोर. काम कशी काय? ते काहीतरी करायला गेली तर जळत निघली होती. मग त्याच्यानंतर आमच्या घराच्या तिथं एक मर्डर झाला, ते बघितलं. ती अशी हास्य बघत गेली ना तर अशी मला काही असं मृत्यू, कोणाचा ऍक्सिडेंट ते बघितलं की हे होते. पण तेव्हाच होतं का मर्डर पाहायला म्हणजे झाला होता तेव्हा? तेव्हाच झालं होतं का त्या काळात? हो, त्याच्या 2-3 वर्षानं. मैत्रिणीचं जेव्हा बघितलं तेव्हा मनावर काय वाटलं तुम्हाला? की कसं झालं? पहिलं काय आलं म्हणजे पहिले काय वाटलं असं एकदम बघितल्यावर असं तुमचं रिॲक्शन कसं? म्हणजे शॉक, म्हणजे काही विचार म्हणजे हेच नाही, कोणाला बोलू वाटे नाही, काही नाही. चक्कर येऊन पडले होते तेव्हा? हो, बिमार पडली होती, चक्कर येऊन. आणि झोप नाहीये, तेच डोळ्यासमोर दिसे. तेव्हा त्या मैत्रिणीबद्दल दुःख वाटत होतं की ते भीती वाटत होती? भीती. भीती, दुःख भी वाटे आणि भीती भी वाटे. So incidents was happened with this patient when she studying in 4th standard. That means 4th standard means around 9 to 10 years of age. Now she is a 24 years of age. See the cause where it is lie so long in the past, and that reflection is still there, which is the intense fear. There was a traumatic event that was happened with the patient life when she was in the 4th standard. क्या हुआ था कि उसके घर में थी पेशेंट, और उसकी जो फ्रेंड थी घर के अंदर से जलते हुए बाहर ऐसे आई, जो पेशेंट के आंखों के सामने वो नजारा था. And it was a patient become so intensely frightened and shocked, दोनों बोलेंगे, so intensely frightened, right, कि एकदम बिनम हो गई. तो उसके बाद कुछ 1-2 साल बाद एक मर्डर देख लिया एरिया में. So that both events so traumatized to the patient mind. तो उसके बाद जो कुछ भी ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स होते थे या इंसिडेंट्स होते थे, किसी ने गुस्सा भी किया है, कुछ हो गया, किसी को डेथ हो गई, तो द सिम्टम्स बिकम exaggerated, where in that time also there was a severe sleeplessness, patient was benumbed, right, was in the grief, was in the. Now again it is important to see कि ये emotions कौन सा predominant था. That's why I'm ask to the patient कि whether it was a grief you have, most likely you suffered with the grief, or whether it was a fright or fear that cause or affect your mind, so which emotion is more predominantly that at that time, right, कि डर लगा कि ऐसे बा डेथ हो गई, अपनी फ्रेंड जो क्लोज फ्रेंड थी उसकी डेथ हो गई, तो ये दुख भी हो सकता है और भीति. तो डर और ये तो मोस्ट लाइकली इट वाज अ फ्राइट एंड शॉक, राइट कि नहीं. तो डर ये प्रिडोमिनेंट था ग्रीफ के साथ में, राइट. तो रिएक्शन टू द सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन, see in the homeopathy what we see the reaction of the person in a stressful event that define the person. Because when you see or ask anyone to narrate your nature, then you don't get the
useful or truthful information, useful and truthful, because you know you can't rely on that information when the patient's narrating their nature, but involuntary reaction at particular incidents is actually a, through this we can understand the patient natures, the patient mental state. तो उस समय का मेंटल स्टेट देखो कि जो इंटेंस फियर था, एंड नाउ ऑल्सो द सेम, कोई भी इंसिडेंस अगर होता है, ही रिएक्ट intensely, her body react and her mind react intensely, right? आणि मर्डरचं बघितलं होतं की फक्त झालं होतं तर ऐकलं होतं? नाही नाही, बघितलेलं आहे मर्डर पण. हो. आणखी काय बघितलं मग? आणखीन बस तेवढंच. आता असं मृत्यू बघितला ना आपण, तेच येते डोळ्यासमोर, म्हणजे झोप नाही येत आपल्याला, तेच विचार, आणि सतत ताप येत राहत आहे मला, आणि मधात पिलिया बी झालता. हे जेव्हा घटना घडल्या तर 10 वर्षाची असते, 12 वर्षाची होती तेव्हा घडल्या, तर तेव्हापासूनच बिमार आहे का तुम्ही? हो, तेव्हापासून होत राहते. म्हणजे असं काही बघितलं ना तर डबल मी बिमार पडते. म्हणजे आता मृत्यू झाला तेच येते, तर खूप इलाज केले तिकडं माझ्या मम्मीकडे, तरी आता हे 2-3 दिवस झाले बघितलं ना. श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी. 3 दिवसापूर्वीच गेले? नाही, आता झाले 10-12 दिवस. देरला मरायला? हो. त्यांचं जेव्हा कळलं तुम्हाला की डेथ झाली, तर तुमच्या मनावर काय वाटलं? असं भीतीशी. ते जुनं आठवते का मग तुम्हाला? हो, ते बी आठवते, आणि असा अंधाराशी भीती वाटते. A few days back there was a family member death. One again it is, मतलब ये है कि जो पुराना डर है वो फिर से रिपरकस हो जाता है या फिर से सरफेस पे आ जाता है. So that intensely, which causes sleeplessness, constant fearful thoughts, with loss of appetite, right? No desire to talk with anyone, no desire to do work like this. So every time, but these things start after that incidence of the friend. Though it is so long, but still the symptoms persist, right? And the old memories or the old that incidents again come into the surface when she seen the incidences of death or any illness, right? म्हणजे ते भीती काय असते तुम्हाला? तिथे गेले ते आपल्या याच्याने, मग तुम्हाला भीती काय असते त्याच्यात? की असं, आणि हे असं कसं घडलं, म्हणजे आत्मादुःखाचं वाटते का असं? हाँ वाटते. अभी अगेन आई एम आस्किंग कि वेदर ये डर किस बात का रहता है, इतना डर रहता है कि कोई ऐसे घोस्ट आएगा, भूत आएगा, उनकी आत्मा आएंगी कि ऐसे, बराबर है कि नहीं? तो उसको कुछ करेंगे, ये उसका ज्यादा ये रहता है कि कोई इंजर्ड करेंगे या आके कुछ ऐसे आप मेरा कुछ गलत करेंगी, ऐसा ये कोई फीलिंग है क्या? वो ये जस्ट आस्क हर. आत्मा दिसते, भटकन, भूत दिसन, असं भूताचं वगैरे वाटते का? आयुष्य भीतीमध्येच तर जगत आहे तुम्ही, कसं लागेल जेवण? मतलब कंटिन्यू पेशेंट और डर के माहौल में ही जी रही है सिंस दैट इंसिडेंट. इट इज नाउ इट्स 12 to 14 years.
बरोबर आहे की काय आता तुम्ही कमी वयात खूप सारं बघून घेतलं असं झालं ते. 1 वर्षाची मुलगी पण आहे. बरोबर आहे की नाही? कमी वयात तुम्ही 10च वर्षाचे होते ना, एवढ्या कमी वयात बघणं तुम्हाला तुमच्या मनाला सहन नाही झालं ते. आणखी काही सांगायचं आहे? तेवढंच. घरी ठीक आहे सगळे मिस्टर वगैरे सासू सासरे वगैरे हो. त्यांच्यामुळे काही त्रास नाही. नक्की सगळं सांगून द्या. हो. त्यांच्यासमोर नसून सांगायचं तर बाहेर बसायचं त्यांना. हां? नाही. हे जे झालेलं आहे सगळ्या गोष्टीचं भीतीच जास्त वाटते ना तुम्हाला, आणि ते भीती कंटिन्यू डोक्यात सुरू असते. हा, तेच विचार येते. भीतीचेच. हम्म. दुःख कमी राहते, भीती जास्त राहते. हा. म्हणजे देर गेला तुमचा, त्याचं दुःख जास्त नसेल, तुम्हाला भीतीच जास्त हा. असेल. बरोबर आहे. हो. आणि रात्री मग कशी झोप लागेल मग डोक्यात भीतीच आहे तर मला सांगा. नाही, मला झोपीचा पहिलेपासूनच त्रास आहे. खूप इलाज केला. कधीपासून त्रास आहे झोपेचा? मला तसं पाहतो तर ते म्हणजे ते घडलं ना तेव्हापासूनच आहे आता मग तेच तर म्हणत आहे ना. झोपीचा. the chronic sleeplessness because of the fear and fright means sleeplessness fright after fear. It is not recently but since the long, since the 14 years, right, since that incidents occur. Incidents झालाय ना. Now here you can see the direct cause effect relationship. See, our basic motto of case taking is we have to evaluate the cause behind the effect. The quality of homeopathy जो है power या what we need to understand in case taking, हम यही देखते हैं कि पेशेंट अगर ये बीमारी है तो क्यों हुई है, why, in what circumstances patient suffered with this condition, whether it is diabetes, hypertension, whether it is ulcer, whether it is pancreatitis, inflammation, whether it is gangrene or whatever it may be. So when you evaluate this thing, then you can able to form the totality. You can understand the patient, the incidents, and the reaction to that incidents at every part of the life, right? विचार करत असेल. हे सगळे डॉक्टर असा इलाज नाही करू शकत. अभी पेशेंट ने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, उसके मम्मी की तरफ गई, वहां दिखाया, पर है ना वो ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ. बराबर है कि नहीं? कोई बोल रहा है खून की कमी है उसके कारण हो रहा है, कमजोरी है उसके कारण हो रहा है. बट सी व्हेन यू इवेल्युएट, टेक द केस इन डीप. अभी ये केस ज्यादा बड़ा नहीं है. सी, अगर आप केस देखेंगे तो ये 10-15 मिनट में केस हो गया है, बिकॉज आई हैव सीन एंड अंडरस्टूड कि ये प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम डेफिनेशन होना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है. See, the patient comes to you with the complaint, not the problem. We have to identify the problem. So define problem definition, then we have to go to the problem resolution. पेशेंट तो कंप्लेंट बताता है ना. पेशेंट ने शुरुआत की कि भूख नहीं लग रही, पेशेंट ने शुरुआत किया कि कमजोरी आती है, पेशेंट ने शुरुआत में बोला कि इच्छा ही नहीं होती है कुछ काम करने की, है ना. तो हमको पहले उसको देखना है कि फिजिकल में क्या आता है. जॉन्डिस भी हुआ था पर उसका डेफिनेट प्रूफ नहीं था, मतलब माइट भी कई गए जो होते हैं ऐसे जो नाड़ी वगैरह चेक करते हैं कि कमजोरी है, भूख नहीं लग रही, तो आपको जॉन्डिस हो सकता है, सफेद जॉन्डिस है ना, येलो जॉन्डिस, सफेद पीलिया, पीला पीलिया, लाइक दैट. सो even jaundice comes afterwards. It's not a jaundice because of that this complaint started. It is not like that, right? एवढे दिवस कुठे गेले होते? आधीच यायला पाहिजे होते तुम्ही. हे सगळे डॉक्टर असा इलाज नाही करू शकत. मनाची बिमारी आहे. आता एक पेशंट आला आमचा, बोलल्यातलं ते काटे नाही का, त्याच्यासोबत मी आली. दुसरे डॉक्टर नाही समजत, नाही म्हणजे सांगत. ते विचारत विचारत नाही नाही एवढं. एवढं पहिले नाही. कशामुळे झाला, हो. ते ज्याच्याने झालं त्याला ठीक करायला लागते. हे असं पिल्यावर औषध देऊन काही फायदाच नाही, कमजोरीवर औषध देऊन काही फायदाच नाही, झोपेची गोळी देऊनही फायदा नाही. हिला एवढे हे यायचं की झोपेची गोळी काम नाही करत हिच्यावर, एवढं यायचं. किती बसून गेले ना.
ठीक है, whether you are in a position to understand the feverish feeling, weakness, appetite, ये था इसका कंप्लेंट। कंटिन्यूअस ऑन एंड ऑफ बुखार रहता है ना, सर दर्द होता है, चिड़चिड़पना होता है, बात करने की इच्छा नहीं होती, और इट्स सो इंसोम्निया। शी along with this she suffered since long time, she suffered with the insomnia, right? So what could be the approach in such a cases? General symptom jaundice, but not define or not have the proof about it. General appearance lean, thin, emaciated, appetite, loss of appetite, thirstless, sleep, dreams mentioned in chip complaint, dreams of even that dead bodies or dead people. All dreams are frightful. 36 kg, 100 170, pallor is there significant, पर abdomen soft है, RS clear है ना? This is the life space I have written in the Marathi in the patient language, right? If you want to read it carefully. कुछ अगर पॉइंट समझा नहीं होगा या सुना ही नहीं दिया होगा तो go through this. Try to interpret the symptoms. Try to see which symptom the diagnostically, see the क्या हुआ है पेशेंट को. Try to understand first patient diagnostically. हम ये बोल देंगे, हम ये डायग्नोसिस नहीं लिख सकते ना, डायग्नोसिस फियर, डायग्नोसिस फ्राइट। तो ये तो जनरल टर्मिनोलॉजी, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है जो उसके जो साथ में मम्मी थी उसने भी आइडेंटिफाई किया कि ये डर के वजह से है करके, है ना, एक्सप्लेनेशन देने के बाद। तो इसमें क्या किया जाए, अभी डर कैसे निकालना है पेशेंट का? हमको भूख बढ़ाने की मेडिसिन नहीं देना है, सी द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। हमको भूख बढ़ाने की मेडिसिन नहीं देना है, हमको नींद आने की भी मेडिसिन नहीं देना है। दिस ऑल सिम्टम्स आर सुपरफिशियल, गोज डीप, सी द कॉज, सी द कॉज एंड ट्राई टू वहां पे स्टक करना है हमको, तभी दिस पेशेंट बिकम क्यूर्ड कंप्लीटली। And one properly selected simillimum will crack the case, will resolve this case, and this doesn't require much time. First dose itself है ना, एक दिन मतलब 2 दिन में 15, मतलब एक दिन में 24 घंटे में पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। 24 घंटे मतलब एक दिन में, और विद इन अ शॉर्ट ऑफ टाइम पेशेंट बिकम्स क्यूर्ड, because this doesn't need a much time to recover। बराबर है। तो क्राइटेरिया ये भी होना चाहिए, डर तो क्राइटेरिया रहेगा पर एपेटाइट, वेट, लाइक दिस। तो उसकी फ्रेंड जली थी, उसका हादसा उसने देखा, मर्डर। यू नीड टू, is it's need to read this? So in our criteria we always go through the diagnosis first, that is the disease diagnosis, person diagnosis and miasmatic diagnosis, है ना? डिसीज डायग्नोसिस कैसे समझेगा, क्या डिसीज द पेशेंट हैविंग, डिसीज डायग्नोसिस क्या होगा? इज इट एनीवन? केस समझा है, केस इतना ही लिया है, बहुत ज्यादा डिटेल में जैसे पूरा इवन थर्मेलिटी या कुछ लिया ही नहीं है। चाहे तो मैं केस भी आपको दिखा सकता हूँ स्क्रीनिंग। मुझे लगा कि दिस इज सफिशिएंट टू रिजॉल्व दिस केस। सो व्हाट कुड बी द डिसीज डायग्नोसिस? हमने इसके पहले भी पूरा एंजाइटी है, फियर है, क्या है, फोबिया है,
फोबिया बोलेंगे, सोशल फोबिया है। तो इट्स one of the doctor diagnosed it as a GAD plus phobia. So it's a both GAD, generalized anxiety disorder. You can see this generalized anxiety, generalized, and there is a phobia is there. Anyone? Anyone want to share? So it's a phobia. See, there are the differential diagnosis when you understand the patient. Shock. Shock is this is our for our understanding. Shock we can't uh, define or we can diagnose it just a shock. है ना? अभी ये बहुत पुराना है ना केस। सी अब बिफोर जो शॉक लगा उसको, ये बहुत पुराना है। द इफेक्ट अभी तक है उसके। The shock could not be a diagnostic terminology. Phobia could be a diagnostic terminology. GAD could be a diagnostic terminology. Right? Anything? For our understanding, we can call it as a patient goes into the shock. No, it's a right in the general understanding. But when we do as a medical practitioner the psychiatric diagnosis, that needs to be precise and accurate. So differential diagnosis, you can think of differential diagnosis, generalized anxiety disorder. You can think of panic, है ना, डर लगता है तो panic disorder, specific phobia, social phobia, post traumatic stress disorder, and somatoform disorder. Or it could be the depression, right? है ना? So is anything still you are in the any change in your perception of diagnosis? Let us see the another presentation. It is a post-traumatic stress disorder, which is chronic in nature. What happens in the post-traumatic stress disorder? There is a exposure to the actual or threatened death, serious injury, or sexual violence in one of the following way. Directly, the patient experiencing the traumatic event directly, or it can be a patient might be a witnessing in a person in event as it occurs to others. This post trauma, right, might be directly उसके साथ में हो रहा है, लाइक रेप हो रहा है या डायरेक्टली इंजर्ड हो रहा है ना, एक्सीडेंट हो गया है उसके साथ, या फिर कुछ इवेंट देखा है विच इज द लाइफ थ्रेटनिंग, witnessing in a person that event as it occurred to others, learning that traumatic events occurred to a close family member or close friend. In case of actual of threatened death of family member or friend, the event must have been violent or accidental. It is not कि कोई भी ऐसा छोटा सा इवेंट हो गया और हम बोलेंगे कि ट्रॉमा और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, that doesn't comes because इमोशन कितना इंटेंस है दैट मैटर, कि उसका इम्पैक्ट कैसा हो रहा है और उसके इफेक्ट कैसे आ रहे हैं। अगर 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 इवेंट अगर छोटा है पर उसके इफेक्ट बहुत आ रहे हैं तो वी कैन से इट इज एक्सैगरेटेड, लाइक दैट वी कैन से द हिस्टेरिकल रिएक्शन और एक्सैगरेटेड फियर, एक्सैगरेटेड इमोशन। बस क्या देखा है, इवेंट कैसा था, हाउ इट इंटेंस और वायलेंट, कितना वायलेंट था इंसिडेंट, दैट मैटर।
or when the disturbance causes the significant distress or impairment in the social, occupational, or other important areas of the life. This is very important. इवेंट हो गया, डर लगा, ठीक है, पर उसके लाइफ में कुछ ऐसे फर्क ही नहीं पड़ा है, पहले भी वैसे थी, अभी भी वैसे है, सो इट इज नॉट गोज, शी इज नॉट गोज इनटू द डिसऑर्डर ना, तो पेशेंट आती भी नहीं ट्रीटमेंट लेने के लिए, बराबर है. सो इट कुड बी इट मस्ट बी अ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. No, it is called PTSD, that is post-traumatic stress disorder. It is a mental condition that some people develop after they experience or witness a traumatic event. The people with PTSD have intense and intrusive thoughts and feeling related to the experience that last long after the event. कुछ ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जिनका फ्लड में जो पूर आता है, पानी से बहाव अपना घर बहा के लेके चले जाते हैं. कुछ लोग ऐसे फैमिली मेंबर पानी में डूब जाते हैं. ऐसे इवेंट के बाद जो ट्रॉमा और एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ मूवी में भी ऐसे दिखाते हैं ना कि एक्सीडेंट में हीरो की जो फैमिली चली जाती है, तो जब भी वो गाड़ी देखता है, कोई भी कार देखता है या गाड़ी देखता है, व्हीकल देखता है या गाड़ी में बैठता है, तो इंसिडेंट्स फ्लैशबैक हो जाता है. The old incidents get flashback and there is a intense fear, intense agitation, palpitation and all this comes up. So ये जो फ्लैशबैक होना चाहिए पोस्ट ट्रॉमा में, तो ट्रॉमा बोलेंगे फ्लैशबैक. तो जैसे कोविड में भी किसी का डेथ हो गया, फैमिली मेंबर का क्लोज, तो इट्स अ ट्रॉमा. नंबर ऑफ सीरीज ऑफ डेथ देखा है, तो कभी भी अगर लाइफ में किसी का डेथ या ऐसे सुनता भी है, तो भी वो फ्लैशबैक होके इमोशंस पूरे बाहर आ जाते हैं. So PTSD involves the stress response like anxiety, depressed mood, feeling of guilt, shame, having flashback or nightmares. In this situation, there could be avoiding situation, places and activity related to the traumatic event. तो ऐसे इसमें क्या होता है ना, पेशेंट को ट्रॉमेटिक जो इवेंट अभी है या इंसिडेंस हो रहा है, जैसे किसी की डेथ हुई, तो अवॉइडेंस बिहेवियर यहाँ पे आ जाता है. And these symptoms cause significant distress and interfere with your daily functioning. Another term is the specific phobia. ये ऑलरेडी एक्सप्लेन. ये स्पेसिफिक में स्पेसिफिक चीज के लिए रहता है. मार्क फियर और एंजाइटी अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, लाइक इंजेक्शन, हाइट, एनिमल्स, रिसीविंग एन इंजेक्शन और सीइंग द ब्लड. ब्लड फोबिया बोलता है ना, किसी को स्पाइडर से फोबिया रहता है, किसी को इंजेक्शन से फोबिया रहता है. देयर इज वन केस इज देयर इन माय ओपीडी वेयर दैट गर्ल, वो गर्ल अभी 17-18 साल की है, but she suffered with the intense fear which causes the sleeplessness and the fearful intrusion of thoughts कि वो आएंगी किससे, बिग रैट, वो छुचुंदरी बोलते हैं ना, सुसुंदरी मराठी में बोलते हैं, छुचुंदरी है ना हिंदी में, छुचुंदरी. तो दैट रेप्टाइल्स और रैट, शी हैविंग द इंटेंस फियर. उसने एक बार देख लिया कि घर में आई है वो छुचुंदरी, और घर में आई है जस्ट, उसको कोई हानि नहीं पहुंचे, कुछ नहीं. एंड द इंटेंस फियर स्टार्ट विद द कांस्टेंट फियरफुल थॉट कि वो आएंगी, पास में आएंगी, काटेंगी, इंजर्ड करेंगी, एंड दैट फियरफुल थॉट कॉजेज द sleeplessness and constant thoughts in her mind, and patient can't able to even sleep because of the fear that that animals comes close and damage or bite her. तो कॉन्स्टेंटली इधर उधर देखते रहेंगी, वहां से आ रही है, वहां से आ रही है, तो उसको इमेजिन वो डिल्यूजन्स भी होने लगे कि वहां से सुचुंदरी आ रही है, मम्मी को बार बार बोलने लगी है. जो दरवाजे के नीचे जो गैप होती है, उसको भी उन्होंने कुछ पूरे घर में उसको पैक कर दिया. जो छुचुंदरी अंदर आई थी, तो उसको भी बाहर भगा दिया. उसको इंस्पाइट ऑफ दैट कि ये चली गई है, द पेशेंट हैव द कांस्टेंट थॉट्स एंड द फियर कि नहीं है, घर में ही है कर. सो दिस इज द स्पेसिफिक फोबिया. दिस इज कॉल्ड एज द फोबिया. So we have seen the fear, we have seen the fright, the phobia, shock, right?
तो ये फोबिक सिचुएशन है दैट गर्ल्स डेवलप द स्पेसिफिक फोबिया टू दैट पर्टिकुलर एनिमल. दूसरे के प्रति नहीं है, चूहे के प्रति भी नहीं है, डॉग के प्रति भी नहीं है, कुत्ता बिल्ली ये दिख रही है उसके प्रति कोई डर नहीं है, वो उसी पर्टिकुलर रैट के प्रति उसको डर डेवलप हो गया है. राइट. सो लाइक दैट. तो इसमें क्या, if it causes, the thought must be persistent, like that. सोशल फोबिया, इसको हम इसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोलेंगे, जहाँ पे देर इज अ मार्क फियर और एंजाइटी अबाउट वंस और मोर सोशल सिचुएशन इन विच द इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू पॉसिबली स्क्रूटिनी बाय अदर. जहाँ पे वो लोगों के ध्यान में आता है, लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उसको डर बना रहता है. सोशल इंटरेक्शन कहीं करना है, मीटिंग है, कन्वर्सेशन है, कहीं फंक्शन में जाना है, कहीं, है ना, कुछ वो खाना भी खा रहा है वहां पे, तो उसको जो डर बना रहेगा, कोई देख रहा है, कोई मेरे गलती को ऑब्जर्व कर रहा है, लाइक दैट. कुछ अगर एक्टिविटी भी कर रहा है, कुछ परफॉर्मेंस भी कर रहा है, तो दैट फियर रिमेन्स इन हिज माइंड. नाउ दिस in social phobia maybe you can see in the children, specific phobia you can see in the children, पर उनका जो symptoms है, उनके जो reaction है because of the phobia might be a different in children, like they may come up with the उसके anxiety symptoms कैसे रहेंगे उसमें. बच्चों में anxiety symptoms like crying, tantrum, freezing, clinging, shrieking, failing to speak in social situation, like that, the symptoms. So like this you can see this patient suffered with the post-traumatic disorder, where you can see the intense fear, or we can say that there is a phobia, where she developed the phobia. But the proper diagnostically, if you evaluate, it is called as the PTSD. Are you with me? It is called PTSD, post traumatic stress disorder. है ना. तो कुछ भी ट्रॉमा अगर है significant, that significant, intense, violent, and that remains in the patient mind, वो अपनी जगह बना लेता है डर, और continuously उसके साथ में है. Right. So what could be the डिफरेंशियल डायग्नोसिस, फाइनल डायग्नोसिस. अभी सिम्टम्स कैसे, आप बताइए क्या सिम्टम्स लेना है, क्या छोड़ना है. शॉर्ट केस 10-15 मिनट का केस है ना. क्रोनिक केस है. अभी क्रोनिक केस में तो हनीमन साहब ने बताया है एफोरिज्म, आई थिंक द फुटनोट ऑफ 120, where the acute causation is important in acute, but causation is not important in chronic case, as there is a miasm is getting evolved. बराबर है कि नहीं. क्यों, उसके पीछे कारण ये है कि जो 10 साल पहले अगर कुछ क्रोनिक एंजाइटी होगा, क्रोनिक फियर होगा, तो फियर में जो पैथोलॉजी डेवलप हो गई, वो अभी 10 साल में वो पैथोलॉजी इवॉल्व होके पहले वो सोरा के अभी सिफिलिस या साइकोसिफिलिटिक पैथोलॉजी हो. तो अभी ये साइकोसिफिलिटिक पैथोलॉजी को ट्रीट करने के लिए वो सोरिक कॉज इन द फॉर्म ऑफ एंजाइटी और फियर इज नॉट अ important to solve, or not useful to solve this case. The cause in that situation is not important. But when you see, is it when you see the fright or shock that time 14 years back, and still that emotions or the stress or the shock or fright still remain in the same intensity and causing the same symptoms. उस समय भी सिफिलिस था, इस समय भी सिफिलिटिक है. With there is a emaciation, loss of appetite, intense fear, sleeplessness, all this. So we can take, because you can see directly the cause effect relationship, and the miasm is into the same miasm.
इट इज नॉट कि हम बोल रहे हैं कि एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी, तो यहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम क्या आएगा? let us share so that you can understand. Right, the horrible things affects her profoundly. Is it the right rubric? Which is that rubric? Very important rubric. This rubric is very important, but whether the see, we can see in the repertory, be alert. Horrible things, sad story affect profoundly. This is the syphilitic rubric. This is a syphilid. This is not soric or psychotic. Horribly, profoundly affected. Horrible things profoundly affect. Profoundly. The impression is so intense. It is a syphilitic impression. Syphilitic expression. बराबर है, बट अभी इसमें रेमेडी तो काफी है. One of the important remedy here is the calcarea, then nitramur, right? So whether you have to prescribe the calcarea, is it this one single symptom is suffice to prescribe, whether it cover the core of the case, whether it really cover the core of the case, or need to add the other symptoms also. Elements from fright, is it we can take it or not? Elements from fright, चलो ये भी लेते हैं. I have already explained कि we can take the fright as the elements from, because fright is the syphilitic intense fear, and still that fright and that fear of fright remain. तो फ्राइट मैं रूब्रिक भी बता रहा हूं आपको. एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, चलो ये ले लेते हैं. अगेन सी तो वेदर वी हैव टू टेक, हाँ मैंने बता दिया, आपने पकड़ लिया उसको. फियर ऑफ फ्राइट रिमेन. दिस इज वेरी यूजफुल रूब्रिक. Whether you have we have to, this is need to understand loss of friend near one. हम इसको रूब्रिक फॉर्म में लेंगे. फ्रेंड लॉस हुआ है, मदर लॉस हुई है, फादर लॉस हुई है, दैट डोंट टेक इट एज अ, वी नीड टू सी द रिएक्शन ऑफ द पेशेंट, द परसेप्शन ऑफ द पेशेंट, दैट नीड्स टू अंडरस्टैंड. लॉस हुआ है ठीक है, पर लॉस तो हुआ है, फ्रेंड हुआ है, कोई भी हो, दैट नॉट इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट इज उसका परसेप्शन क्या है और रिएक्शन क्या है. So then don't take separation of loved one, loss of loved one as a rubric. That is not a definable rubric. That is not a qualitative rubric that gives rise to qualitative remedy. Right? Never use such a type of rubric. See the reaction. See the क्या reaction था? Fright. है ना? Fright, shock. है कि नहीं? एंड दैट्स व्हाई द ये रूब्रिक भी काफी इंपॉर्टेंट है. फ्राइट, फियर, एग्रेवेशन, फियर ऑफ फ्राइट स्टिल रिमेनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्राइट तो होके गया, पर वो अभी भी वही डर में है, वही डर में जीवन अपनी जी रही है. जो 14 साल पहले जो डर में थी, जो फ्राइट में थी, अभी भी वही डर में है, उससे बाहर ही नहीं निकली. That's why this rubric is very very important. The fear of fright still remaining. एक मैंने केस भी आपको बताया होगा मेरे सेशन में कि एक अल्कोहल विड्रॉल का केस एडमिट किए थे हमने पालघर में, जब मैं मेडिकल ऑफिसर था अंडर द साइकेट्रिक डिपार्टमेंट. तो वो थोड़ा सा फियरफुल एकदम, उसका अल्कोहलिक तो था, अल्कोहल ज्यादा ले लिया, तो समझ में नहीं आ रहा था कि अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के कारण हुआ या क्या. तो फियर, नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी हो रही थी. तो उसने 2 दिन पहले
2-3 दिन पहले उसने ड्रीम्स देखा और इतना ड्रीम्स भयानक और डरावना था कि वो ड्रीम से उठ गया, और इतना डर कि वो रूम में जाने से वो डर रहा था। उसको वो रूम देखने के लिए डर रहा था। तो ही वॉज इन अ कॉन्स्टेंट फियर, और वो फियर अभी भी मतलब 5 दिन 6 दिन कंटिन्यू है, पेशेंट हुए हैं। मतलब वो ड्रीम से और डर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। जो माइट भी ऐसे होता है ना कि डर है, ठीक है, एक्यूट फियर डेवलप होता है, बट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम उससे बाहर निकल लाते हैं। ग्रीफ रहता है किसी के लव लॉस ऑफ लव वन, बट विद इन अ पीरियड, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में पर्सन उससे धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। पर ऐसे भी केस देखे होंगे कि 5 साल हो गए पर वही दुख में अभी भी वो लेडी है, वही दुख में, उससे बाहर ही नहीं निकल पाई। दैट ग्रीफ इज सो इंटेंस, है ना। तो ये कैसे ये होता है। तो अगर वो ग्रीफ हुआ है और उससे अभी कुछ इसका डिसीज का और उसके सिम्टम्स का कुछ लेना देना ही नहीं है, तो डोंट टेक इट एज एलिमेंट्स फ्रॉम। यहाँ तो सब हमको दिख रहा है कि ये जो इफेक्ट हो रहा है अभी, ये कॉज इसका रिमोट कॉज है। तो फियर ऑफ फ्राइट स्टिल रिमेनिंग। अगेन इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सी हियर, फ्राइट फियर एलिमेंट्स फ्रॉम, है ना, सबको दिख रहा होगा। एक्सीडेंट फ्रॉम साइट ऑफ एन, सी न्यू अगर है रिसेंटली, 2 दिन पहले 4 दिन पहले हुआ है, तो है ना, तो एकोनाइट आप सोचेंगे। अगर ओल्ड है तो दूसरा रेमेडी है ओपियम। तो उसमें जो अल्कोहलिक विड्रॉल या अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन का जो केस मैं बता रहा था, तो उसमें उसका हमने यही रूब्रिक लिए थे, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट ड्रीम्स के कारण, एंड द फियर ऑफ फ्राइट स्टिल रिमेनिंग, और तीसरा कि वो अल्कोहलिज्म, इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। तो ये तीनों अगर हम मिलाते तो उसमें दैट टाइम द ओपियम वाज प्रिस्क्राइब। द अनदर डिफरेंशियल रेमेडी दैट कम्स अप वाज द एकोनाइट, but this alcohol phenomena was not predominant in the aconite. There was restlessness, fear of death, ये सब था। पर the case of alcohol intoxication, alcohol withdrawal, that was not alcoholism, ये एक rubric है, that not covered under the aconite. So that's why opium was prescribed that time. तो अभी हमको ये अभी, तो अभी इसमें क्या आना चाहिए, कौन सा रेमेडी आएगा? Delusion frightful, yeah, we can think of this rubric also. Delusions मतलब जो भी दिख रहा है तो डरावना दिख रहा है ना। So remedy, one of the doctor think of, let us see what happened. The remedy is opium. So whether the opium is really, we need to give the opium as a similinum to the patient, or needs another. So mental symptoms we can collect is the fright elements from fright of fear still remaining, fright, fear, aggravation, accident from sight of an old accident। एक्सीडेंट मतलब वो एक्सीडेंट ही था ना उसके साथ में, कि एकदम से जलती हुई उसने लड़की को देख लिया, फ्रेंड को देख लिया। फियर ऑफ मिसफॉर्चून, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। ड्रीम्स ऑफ डेड पीपल, स्लीपलेसनेस, फ्राइट फ्रॉम, and the important is another needs to add here is the syphilitic general symptom, that is the emaciation, that is the emaciation. So add these symptoms to in your totality, so that the totality become complete। तो जनरल टोटालिटी हम देखेंगे तो ये आएगा मेंटल सिम्टम पर। अगर टोटालिटी हम माइजमेटिकली फिल्टर करके अगर लेते हैं, तो इट इज फियर ऑफ मिसफॉर्चून, ड्रीम्स, ये सब साइकोटिक, साइकोटिक टेंट है, इसमें साइकोटिक बैकग्राउंड है। तो डोंट नीड टू टेक द साइकोटिक सिम्टम directly, see the all the syphilitic symptoms you can see here, elements from fright of accident, old horrible things, sad story affects very profoundly, and the emaciation। बराबर है। तो ये पहला जो सिम्टम्स है उसके उसका रिपोर्टराइजेशन है।
इंक्लूडिंग ऑल द सिम्टम्स एंड अनदर जो मैथमेटिक फिल्टर करके जो रेपर्टराइजेशन किया है, तो उसमें इसमें ये रेपर्टराइजेशन है. नाउ सी द रेमेडी विच कम अप. इट इज नॉट नेसेसरी कि पहला रेमेडी देना है, बट ऑल द सिम्टम्स विच इज हाईली इसेंशियल, और पूरे सिफिलिटिक सिम्टम लिए हैं हमने, तो पूरे सिम्टम्स कवर होना जरूरी है. क्योंकि हमने सिम्टम ऐसे बहुत सारे नहीं लिए ना, 15-20, तो हमको कोई सिम्टम हम कम लेस इंपॉर्टेंट वाला छोड़ देंगे. यहाँ पे सभी सिम्टम्स हम गैदर्ड किए हैं. तो ओपियम कम अप. द अनदर रेमेडी कम अप इन डिफरेंशियल इज द एकोनाइट एंड कल्किरिया कार्ब. तो सी कैसे हम इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, कल्किरिया कार्ब है कि एकोनाइट है कि ओपियम है, देखना है. मट्रा मेडिका क्या देखते हैं, कल्केरिया. सी कल्केरिया कार्ब ट्राइमेस्मेटिक मट्रा मेडिका कैसे है, कल्केरिया कैसे होता है ना. पहले तो फिजिकल मेकअप देखेंगे तो अलग ये इमेसिएशन है ना. बेसिकली जो नेचर होता है कल्केरिया का टीमिड, एंटिसिपेशन, एंजाइटी वाला रहता है. पर जब ये कल्केरिया कुछ भी उसका एक्सपोज होता है फियरफुल इंसिडेंट से, तो he becomes clinging to God and Guru. This is the syphilitic picture of the Kalkiria. There is in Kalkiria आप देखेंगे कि because the Kalkiria is highly insecure person, the insecurity is the core of the Kalkiria drug or remedy. You can see in order to become secure, we always take the support of the gurus, the higher person. Excess devotion and clinging to God, Guru, and spiritualism, sacrificing and neglecting the family, aversion to mental, anguish with palpitation and despair of recovery. There is lot of fear you can see in the Kalkirias. All जितने भी fear है आप देखेंगे कि कलकिरिया कवर करता है करके. Handle things cannot anymore overwhelmed by the stress. अभी इसमें हम ये भी इंपॉर्टेंट है कल के. पीपल डिल्यूजन कंफ्यूजन दैट पीपल डोंट ऑब्जर्व हर, ये स्पेसिफिक सोशल फोबिया में ऐसे एक सिम्टम है. तो कल्केरिया में ये प्रोमिनेंट है कि कुछ भी जब करता है तो उसको लगता है कोई तो हमको ऑब्जर्व कर रहा है, या कोई हमारी ऑब्जर्व करके कुछ मतलब कोई मिस्टेक हमको पॉइंट आउट करेगा. तो ही इज ऑलवेज इन अ डायलेमा और कंफ्यूजन और इन द अनसर्टेनिटी, एंड ऑलवेज इन अ थॉट दैट पीपल आर ऑब्जर्विंग मी. So he becomes in a confusion, right? So this is very important symptom in the Kalkiria. Another remedy you can see the aconite. You can think of aconite in the acute condition where there is the elements from fright is there. The fright which is new, fright, elements from fright of fear which is newly of new incidents. तो वहां पे aconite देना ही है, आपने सोचना है. Where there was an intense fear, intense agitation, intense restlessness followed with the fear of death. There is a great anxiety and patient goes into the anguish, and there is a agonizing fear and restlessness. Even in the panic state. एक पैनिक डिसऑर्डर का केस हमने देखा था इसके पहले, उसमें मैंने एक्यूट में एकोनाइट 10 mg दिया था कि जब आपको पैनिक अटैक आएगा तो यू टेक दिस एकोनाइट 10 mg. तो पेशेंट ने फील किया कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ सेकंड, उसको उसके इमोशंस, पाल्पिटेशन, फियर कैसे सेटल्ड होने लगे विद इन अ सेकंड. बराबर है. सो इफ इट इज द रेमेडी एट दैट टाइम, वो स्टेट के लिए सिर्फ उतना था. एकोनाइट वाज एसओएस में दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेट रेमेडी दूसरी थी. सो दिस इज द एकोनाइट पिक्चर. Fear of crowd, fear and predicting the death, all this you can see. Now see the opium. Quick, sharp. This is a psoric picture of this acute tubercular or psoric picture. ये psychotic picture है. Opium in the syphilitic picture you can see the contented. You can see the contented person. See the fear of fright still remaining. This is very important.
In coma, if you see, contented and quiet, though there is a, in severe condition also, in cancer also, the patient is contented. If you looking by observing, you see this rubric. Even in the fatal illness, think of the opium. Stupid sleep, somnolency, all these symptoms you can see. Painlessness of complaints usually painful. This is the जहाँ पे हम पेन एक्सपेक्ट करते हैं. देर आर सर्टन कंडीशंस, है ना, जहाँ पे इन्फ्लामेशन है, अल्सर है, पर वहाँ पेनलेस है. वेदर यू एक्सपेक्ट दैट कि देर इज अ सीवियर पेन, और है ना, पर वहाँ पे पेन ही नहीं होता है. कुछ पेनलेस अल्सर भी होते हैं, दैट नीड्स टू इवेल्युएट. तो इन दैट way you can think of this opium. Another remedy is the phosphoric acid. So fright from sight of an accident, fright, fear of fright, still remedy. These two symptoms are highly remarkable, and this cover the core of the remedy. And another symptom is the horrible thing, sad story affects her profoundly. Now all these symptoms covered by the opium. Right? So that's why the final drug I choose is the opium. Now opium severe intense है, तो इसमें I have prescribed the 200 dose, 200, and repeat it for 2 to 3 days. Right? In spite of that, if you want to prescribe the opium 1 mg, the single dose, that is also a good choice, the potency selection. In spite of that, I have chosen the opium 200, the BD dose for 3 days, and SBR TDS for 1 week, because this is the deep and intense. So those रिपीटेशन आई प्रिफर. तो ये 3/10/2023 को फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन दिया था पेशेंट को, राइट? 3/10 सीधा. और फॉलोअप कब का है? 10/10, 3/10 और 10/10, मतलब ये 7 दिन बाद ही पेशेंट को बुलाया मैंने. अभी पेशेंट के साथ उनके हस्बैंड आए थे, तब मदर आई थी, अभी हस्बैंड आए. तो अभी इनका फॉलोअप कैसे है देखो. कसं वाटतंय आता? आता बरं वाटतंय. कसं डोकं पेशंट का दुखतंय. चेहरा? औषधानंतर काय फरक पडलाय आता? तर तेवढं हे नाही होत. हा. आणि ते इथं दुखते कोट्यात असं. खूप दुखत आहे. म्हणजे The inflammatory हो, हो. pain is there, but the most important or evaluate. अब ये evaluate कैसे करेंगे, ये important है. Most important और syphilitic symptom क्या है? Fright, constant fear, है ना, मतलब intense fear, sleeplessness, loss of appetite. First, that needs to be better. If patient might develop some inflammatory symptoms, headache or their abdominal pain, that is negligible, है ना, that don't needs to take into the account unless and until it is the severe. नहीं तो पता चला रेमेडी, मतलब फियर फ्राइट तो ठीक है, पर अपेंडिसाइटिस होके गैंग्रीन हो रहा है, वो सब हो रहा है ना. तो दैट इज नॉट अ, द रेमेडी इज नॉट गोइंग इनटू द प्रॉपर डायरेक्शन. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है. दिल्यावर कसं आहे ते सांगा. बरं आहे ना, आराम पडला. काय फरक पडलाय आणि कसा फरक पडला? म्हणजे तेवढे विचार नाही येत हम्म. आणि एकदम असे हे नाही होत. फक्त झोपच नाही येत. झोप येत नाही आता? नाही. बिलकुल नाही. नाही. तुमच्या डोळ्याकडे पाहून तर वाटत नाही झोपत नाही म्हणून तुम्ही. उठते ते घडी घडी उठते म्हणून तिला वाटते. हा. घाबरलं आणि वाटते का? हा. ते भीती कमी झाली का आता? हो झाली. हा, नक्की नक्की. होईल आता, हळूहळू आणखी पूर्ण कमी होईल. ठीक आहे ना. विचारही कमी झाले आणि तापसारखं वाटत होतं ते हा, ते बरं आहे. बरं आहे. फक्त सतत डोकं दुखतं. तापसारखं वाटतं म्हणे, डोकं दुखतं म्हणे, चिडचिड होते म्हणे, बोलायची इच्छा नाही होत. है ना? हा. डोकं दुखण्यात काही फरक नाही आहे का? नाही दुखते, राव दुखते. म्हणजे आधी जेवढं दुखत होतं तसंच दुखते? नाही कमी झालं ना म्हणजे. The physical symptom, mental symptom, physical symptom and particular symptom. हमको
क्रायटेरिया में बिठाना है और अकॉर्डिंगली वी झोप येते मस्ट तुम्हालाच कळत नाही झोप येते. 3 वेळा उठत असेल म्हणून तुम्हाला वाटतं. तेव्हा कसं वाटतं? अगेन यू कैन सी द फेस डोकं डोकं फेस ऑफ द पोट कधी दुखते? फेस भी देख सकते हैं थोड़ा, अगर देखेंगे तो फेस में भी आपको चेंज दिखेगा. अभी एपेटाइट भी इम्प्रूव हुआ है, पर अपन अभी वजन की एक ही नहीं देखते हैं. 10-10 का फॉलोअप है आफ्टर 1 वीक. भीति कमी, तापसार का कमी, सरदर्द भी कम, कंप्लेनिंग ऑफ पेन इन द लोअर एब्डोमेन सिंस 4 to 5 days. वेट इज द 37.5 kg. अभी एक हफ्ते में वेट इंक्रीज बाय द 1.5 kg. मतलब एक ही वेइंग मशीन थी, ऐसे नाही की वेइंग मशीन चेंज हुआ है. मतलब मेन जो त्रास होता तो आराम झाला, म्हणजे जे भीतीचा त्रास होता तो तर आराम झाला एकदम. अगेन considering the intensity of symptoms, I prescribe the same opium 200 BD for 3 days and SBR for 2 weeks. कि अभी श्योर था कि अभी ये पूरा विद इन 2 weeks ये पूरा कम होना ही चाहिए. राइट, 1 week पहले मेडिसिन दिया है ना, देखने के लिए कि कैसे रजिस्टर्ड हो रहा है मेडिसिन. और अभी व्हेन यू आर श्योर विथ योर रेमेडी एंड द इम्प्रूवमेंट, देन यू कैन प्रिस्क्राइब द मेडिसिन फॉर 2 weeks और 1 month. अभी 10, अभी हो देखिए 10 को आई, 17-10 को फिर से आ गई. बट ये वो खुद के लिए नहीं आई है ना, यहाँ पे 2 weeks का दिया है, वो दूसरे के लिए आई. मतलब क्या फियर नहीं है अभी, उसका जो फॉलोअप था डर नहीं है, जो फियरफुल थॉट थे वो नहीं है, फीवरिश फीलिंग भी नहीं है, नींद भी आने लगी है, सर दर्द भी काफी कम हो गया है, नॉट ऑल 100% पर काफी, और जो एब्डोमिनल पेन था वो भी नहीं है. तो उसको लगा अभी तो सब ठीक हो गया, अभी मुझे जरूरत नहीं है. अभी देखिए कैसे होता है हमारे प्रैक्टिस में. ये पेशेंट को किसी और पेशेंट ने भेजा है, जो एक बच्ची थी जो ब्रोंकियल अस्थमा से सफर्ड थी. उसको विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको काफी आराम मिला. एक्यूट एपिसोड में आई थी ब्रोंकियल अस्थमा के. तो उसने काफी फिर आजू बाजू वाले पेशेंट को दिखा बताया, तो ये उसके कहने पे आई. और इसको अच्छा लगा तो देखिए उसने अपने फैमिली को दूसरे मेंबर को लेके आई. बराबर है कि नहीं? सो ऐसे होता है. तो यू डोंट नीड टू एडवर्टाइज मच. हमारा जो मेन एडवर्टाइजर है या एडवर्टाइजमेंट करने वाला जो सोर्स है, दैट इज द पेशेंट इटसेल्फ. तो वो आए तो मैंने उसका भी हालचाल पूछा, बाकी दूसरे जो पेशेंट उसने लाई थी उसका भी केस लिया. और उसको ये है कि अभी लेने की जरूरत ही नहीं लग रही है, तो मैंने फिर से उसको 2 weeks का मेडिसिन दिया, मतलब ऑलमोस्ट 3 weeks का. एंड द पेशेंट वाज, जब वो उसके क्लोज फैमिली मेंबर के लिए आई नेक्स्ट टाइम भी फॉलोअप के लिए, तो शी वाज एब्सोल्युटली बेटर. एंड इवन आई डोंट फील कि दैट पेशेंट नीड मेडिसिन एनी मोर. राइट, so she was completely better with the few doses of the opium. Right, so selection of remedy is decide कि आपकी रेमेडी, मतलब एक्शन ऑफ रेमेडी डिसाइड वेदर यूर रेमेडी इज राइट और रॉन्ग. मैं कितना भी बोलो नहीं यहाँ पे सिमिसिफ्यूगा है या पल्सिटिला है, पर काम किए कि नहीं, कैसे काम किया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अभी फ्राइट रिलेटेड रूब्रिक्स आप देखिए, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी केस में, आपके दूसरे केस में भी काम में आएगा. फियर, फ्राइट, फियर एग्रावेशन और एलिमेंट्स फ्रॉम, जो रूब्रिक रेपर्टरी में दिए है उसको मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे. फ्राइट, फियर एग्रावेशन और एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सीडेंट फ्रॉम साइट ऑफ एन न्यू एक्सीडेंट. अगर है रिसेंटली एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट है तो आप आंख बंद करके एकोनाइट दे सकते हैं. फ्राइड ऐसे नहीं है कि ब्लीडिंग हो रहा है, हिमोरेज हो रहा है, सेप्सिस में जा रही है और फिर आप एकोनाइट दे रहे हैं. ये पैथोलॉजी इज डिफरेंट. ओनली एट द मेंटल लेवल अगर सिम्टम्स है, आपको लग रहा है कि फंक्शनल है, दो इट इज सिफिलिटिक, फंक्शनल है, पर अगर सिफिलिटिक फिजिकल या बॉडीली पैथोलॉजी है, देन फिर आप सिर्फ एकोनाइट नहीं सोच सकते, आपको दूसरी रेमेडी सोचना पड़ेगा. एक्सीडेंट फ्रॉम साइट ऑफ एन ओल्ड एक्सीडेंट, लॉन्ग रिमोट एक्सीडेंट, पर उसका डर अभी भी है, तो ओपियम. फियर ऑफ फ्राइड स्टिल रिमेनिंग, एकोनाइट, ओपियम.
Fright, anger with aconite and ignitia. Fright elements from grief with, जब ग्रीफ एंड फ्राइट दोनों साथ में है तो थिंक ऑफ ignatia, only one remedy, which is given in the Robbins Murphy repertory, not in the complete repertory. Mental and emotional consequences you can see from elements from fright, but old elements from the opium is only remedy like that. Old accident, वैसे opium. Newborn in. If you see, there is a fright in the newborn, newly born child. If you see by anyhow sudden noise से या कुछ हुआ है और fright से गया है, that emotion, having some disturbance at the even physical level, think of this aconite as a remedy. When you get the symptom elements from fright, newborn in, aconite is only a remedy. You can see the fright operation after. ऑपरेशन से इतना इंटेंसली उसको डर पैदा हो गया है ना, तो ऑपरेशन के सिम्टम या वो सिम्टम तो अलग रहे, पेशेंट इज इन द कांस्टेंट फियर, तो ऑपरेशन से डॉक्टर के पास जाने से हॉस्पिटल से डरने लगा. The remedies are like aconite, arsenic, stramonium, strontium, carb. Elements, fright elements from ordeal of an, मतलब फंक्शन में जाना है, कहीं जाना है, तो एंटिसिपेशन एग्रावेशन वाली जो रेमेडी है, जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम जेल्सियम 4+. फ्राइट विद द शॉक, इन शॉक और फ्राइट, सरप्राइजिंग इवेंट और फ्राइट दोनों है, तो थिंक ये रॉबिन मर्फी में रूब्रिक है, एकोनाइट, आर्निका, हैपेरिकम, इग्नेशिया, ओपियम. So these are the rubrics which denotes the symptoms, the fright, elements from fright, which is all these rubric is the syphilitic, is the highly important and most important. So if you get such a expressions, think of such a rubric and think of this remedy. All deal with the fear, fright, anxiety, shock, and trauma, post-traumatic disorder we are considering here, right? There is another case, but I don't think there is a time, we have the time to, I have time to present that case, which also define the fear and fright. बराबर है, but ठीक है, I think this today this is sufficed, right? So I think all are understood the thing, all are agree with the remedy what I prescribe, right? Anything you want to ask? So thank you very much. If you have any query, so Sir, let excuse me, us. sir. Huh. You can put that case on the group, the next case which you want to present. We can solve it and Put directly. Okay, you want to solve it. Okay. yeah. We can do it. Right. So Okay, sir. ये थोड़ा सा वीडियो तो नहीं मैं दिखा पाऊंगा, वो वेरी शॉर्ट, काफी शॉर्ट केस है वो, वीडियो नहीं, वो सब वीडियो है उसका, तो उसको मैं ट्रांसलेट मराठी हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको कोशिश करता हूँ आपको प्रोवाइड करने का. ठीक है, शेयर ठीक है सर. Thank you, sir. Okay. One of the questions that ask where there was a Freudian theory was there, id, ego, superego. तो oral and anal fixation का था, तो oral fixation हुआ है, तो उसको हम कैसे उससे बाहर निकले, तो I will talk about that in the latter session, because it needs because there is some therapy like a CBT, cognitive behavioral therapy, CBT, which is highly qualified qualitative. तो उसका मैं पूरा आपको बताना है मुझे, that's why I'm not taking it that point, I'm not exploring, है ना. तो उसको कैसे हम जो साइको एनालिसिस करना है या साइकोपैथी को कैसे या कन्फ्लिक्ट को कैसे डिकन्फ्लिक्ट करना है, तो उसके बारे में मैं आगे सेशन में ऐसे
डिटेल में बताऊंगा, राइट? सो स्टिल दैट क्वेश्चन इज इन माय माइंड, राइट? Okay, sir. Thank you. हाँ, ओके, थैंक यू।